Good morning, students. I have taught you atomic structure. In previous classes, we have discussed about different model of structure of atom. We have studied J.J. Thomson's atomic model and its merit and demerit. Later on, we have studied Rutherford's atomic model, which is also known as alpha ray scattering experiment or discovery of the nucleus. Now, he bombarded thin gold foil with alpha particle. He observed that most of the rays are passed in a straight line without any deviation, which shows that most of the space and an atom is empty. He found that one ray in 20,000 just deviated at obtuse angle, which shows that some some same charges are present at the center, which is repelling the alpha rays, as alpha rays are radioactive rays which are double positively charged helium atom. One ray in 20,000 just return back now at 180 degree, which shows that some positively charged particle is present at the center. ठीक है, and later on that very positive charge was found to be proton. ठीक है, he also calculated mass of nucleus, center and total volume of the atom. He concluded that total mass of an atom is concentrated at the center, that is known as a nucleus, which contains positively charged particle proton, which repels the alpha particle. That is why the one ray in 20,000 does not touch the center nucleus and return back, ठीक है, without touching it. The distance between the ray and the nucleus, मतलब जितना गैप बचा, that very distance is known as distance of closest approach, and it is of the order of 10 to the power minus 15 meter. That is 1 Fermi. ठीक है, total size of an atom is found to be 1 angstrom and the size of nucleus was found to be 1 Fermi. ठीक है, इतना कैलकुलेट किया गया था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। टोटल मास जो होता है सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, विच कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ना, और दोनों का खोज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो देखो, कोई न्यूट्रल एटम है तो टोटल मास तो आप कह दिए कि सेंटर पर है, और सेंटर पर प्रेजेंट कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। दैट मीन्स द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यही से फॉर्मूला निकल गया एटॉमिक मास का, ठीक है। और द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के उसके न्यूक्लियस पे पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। thus we can say that atomic number is equal to number of proton which is equal to number of electron for neutral atom. Let us see once again atomic number. It is represented by Z. Atomic number denotes the number of proton or the number of electron in the neutral atom. अगर कोई neutral atom है तो जो number of proton होगा वही atomic number होगा, लेकिन अगर वह neutral है तो वह number of electron के बराबर भी होगा, लेकिन number of proton के बराबर always होता है। ठीक है, atomic number is represented by Z, ठीक है, which is equal to number of proton in the nucleus of an atom or ion. It may be equal to number of electron in the neutral atom. अगर neutral atom है तो number of electron के बराबर भी होगा। ठीक है, atomic number mass या mass number। ठीक है, तो mass number जो होता है आपका ना, इसको कैपिटल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट न्यूक्लियस। ठीक है, मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। Proton and neutron present in the nucleus of an atom are collectively known as nucleon. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस पर, उसको एक साथ हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। देयरफॉर द मास नंबर इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन नंबर। मास नंबर को और हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं।
mass number is equal to number of proton plus number of neutron present at nucleus of an atom. The number of neutron in an atom is equal to differences between mass number and atomic number. तो ये सिंपल अलजेब्रा है आपका, इसको सिंपल अलजेब्रा से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपका A बराबर हो गया क्या, एटॉमिक मास या मास नंबर बराबर क्या हो गया आपका, A बराबर हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z प्लस n हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो इसको हम लोग रीअरेंज नहीं कर सकते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस जेड, यानी कि ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों के डिफरेंस निकाल दीजिए, वही न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल अलजेब्रा के हिसाब से निकाला गया है, यानी कि n बराबर a माइनस जेड आ जाएगा आपका। Complete symbol the contains the symbol of the element, the mass number and atomic number। जो सिंबल जैसे सपोज कोई एलिमेंट x है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो होगा यहाँ पर लिखा जाता है z, ठीक है, और मास नंबर जो होता है a उसको ऊपर में लिखा जाता है, यही रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये x हो गया, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट जो होता है आपको एटॉमिक यानी मास नंबर लिखा जाता है, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर वाला मास नंबर, और सब स्क्रिप्ट जो हो गया वो हो गया एटॉमिक नंबर, वो नीचे में लिखा जाता है, ठीक है। देख आप सब स्क्रिप्ट देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर नीचे में लिखा जाता है ना, जिसको आप जेड कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ आइसोटोप्स। आइसो मीन सेम, टॉप्स मतलब पोजीशन। दोज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but different mass number are known as isotopes। आइसोटोप्स में एक ही एलिमेंट के दो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, जिसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं ना। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which have same atomic number but different mass number are called isotopes, ठीक है। आइए एक एग्जांपल देकर के मैं समझा देता हूँ आइसोटोप्स को। जैसे कार्बन है तो कार्बन के दो आइसोटोप्स हो गया आपका, दोनों का एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6, इसका एटॉमिक नंबर 12 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 14 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा आपका, इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग हो गया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे एटम ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। डाल्टन वाज रॉन्ग अबाउट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप बीइंग आइडेंटिकल। डाल्टन का कहना था कि जैसे हम लोग गोल्ड ले लें और गोल्ड को काटते चले जाएं तो उसमें से ऐसा नहीं है कि तांबा निकलने लगे, अगर ऐसा रहता तो ब्लैक यानी सोनार को पकड़ पकड़ के लोग मारते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सोना रहेगा तो सोना ही निकलेगा, ये कहना था। लेकिन ये कह दिया था कि मतलब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर alike with all respect, but in the case of the isotopes we are seeing, in the case of the carbon they have same atomic number but their mass number is different, thus we can say that in the case of the isotopes they can be different with respect to mass number and neutron, ठीक है। तो यहीं पर डाल्टन फेल कर गया था। फाइल सर छोड़ कहा हाँ, एक बार फाइल गिन लीजिए, गिन करके ले लीजिए। पीछे हो होगा अनुसमात क्यों होगा, नहीं नहीं नहीं, कॉल्ड आइसोटोप्स, उसका फाइल इसमें होगा भी नहीं, तो इसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, आइसोटोप्स के बारे में हम लोग देख रहे थे। फ्रेडरिक सॉडी एक साइंटिस्ट था, प्रपोज द आइडिया ऑफ आइसोटोप्स इन 1912। 1912 में फ्रेडरिक सॉडी जो था वो उसी का आइडिया दिया हुआ है आइसोटोप्स का, ठीक है। ये साइंटिस्ट आप देख रहे हैं फ्रेडरिक सॉडी। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट having different masses due to varying number of neutron। वैसे दो एटम जो एक ही एलिमेंट के हों लेकिन न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग हो, क्यों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि मास नंबर उनका अलग अलग है, वैसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है हम लोग। थोड़ा सा रुक जाइए, उसमें देख लीजिए कोई दूसरे ये क्लास का फाइल नहीं ना है, 11th वाला छांट लीजिएगा, अगर दूसरा फाइल होगा तो। एक फाइल अनुज का नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए, इस क्लास के बाद फिर हम हमसे बात कर लेते हैं आपसे। छठा का नहीं ना है, 6 क्लास का फाइल नहीं ना उसमें, देख लीजिए, छांट लीजिए। आइसोटोप्स, हाँ ये हो गया, तब फिर कैसे ले जा रहे हैं उसको।
दिलचस्प होना। तो ये हो गया आपका आइसोटॉप्स। ठीक है, सोडी won the Nobel Prize in the chemistry in 1921 for his work with isotopes and radioactive materials। रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के लिए और आइसोटॉप्स के लिए क्या कहा जाता है, सेडविक को सोडी को फ्रेडरिक सोडी को क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अब आ जाइए। बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इससे हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये देख लो। तो केमिकल रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। जहां पर भी केमिकल रिएक्शन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है। तो इन द केस ऑफ द आइसोटॉप्स, number of atomic number are same. If atomic number are same, then proton number will be same. And for neutral atom, number of electron is also same, and electrons, if the atoms of the same element have same number of electron, then they will show same type of chemical properties। ठीक है, वही कह रहा है, बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो दे विल हैव डिफरेंट मासेज एंड हेंस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है मास पर डिपेंड करता है। जैसे कोई मोटा हो गया, कोई दुबला हो गया, कहते हैं ना अरे मोटू जा रहा है, पतलू जा रहा है, मोटू पतलू एक सीरियल भी है। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिसाइड होता है मास नंबर पर डिसाइड होता है, और केमिकल प्रॉपर्टी जो डिसाइड होता है वो आपको किस चीज पर डिसाइड होता है, एटॉमिक नंबर पर डिसाइड होता है, इलेक्ट्रॉन पर डिसाइड होता है। तो चूंकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। ठीक है, लेकिन मास नंबर अलग अलग होने से उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन जिसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, दूसरा हो गया ड्यूटेरियम, तीसरा हो गया ट्राइटियम ना। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंसेज जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। तो दोनों का डिफरेंसेज 0 आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन ही, प्रोटियम यानी हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सब में है। ड्यूटेरियम में आइएगा तो 1 न्यूट्रॉन है, ट्राइटियम में आइएगा तो 2 न्यूट्रॉन है। यही ड्यूटेरियम जो है हेवी वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके न्यूक्लियस पर 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसके न्यूक्लियस पर 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन मत कहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दम सेम है, प्रोटॉन तो दम सेम है आपका। ये इस पर हो गया आपका क्या, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। इसके न्यूक्लियस पर 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। यही मास नंबर 3 के बराबर हो गया, मास नंबर 2 के बराबर हो गया, मास नंबर 1 के बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाइए आइसोटोप्स। एलिमेंट्स अकर इन नेचर एज ए मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, एलिमेंट जो होते हैं नेचर में पाए जाते हैं किस फॉर्म में, आइसोटोप्स। जैसे क्लोरीन है तो 37 एक 35 होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाएगा। तो इसीलिए करते क्या है कि हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, और क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास जब निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन तो 35.5 आ जाता है। ठीक है, आइसोटोप्स आर atoms of the same element that differ in the number of neutron only। ठीक है, यही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ना होता है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आप हाइड्रोजन के केस में 3 हो गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो गया, ये 3 हो गया इसका आइसोटोप्स। इसके बाद हीलियम में देखिए तो हीलियम का ये हो गया आपका। ठीक है, लिथियम का देख लीजिए 2 आइसोटोप्स हो गया, लिथियम 6, लिथियम 7, हीलियम 3 एंड हीलियम 4। ठीक है, यहाँ रेड का या पिंक कलर देख रहे हो नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा है, ये ब्लू कलर जो हो रहा है वो आपका न्यूट्रॉन बता रहा है। तो हाइड्रोजन में देखो इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है। और ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन ना, और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए पॉजिटिव चार्ज सेम होगा। हीलियम में 2 प्रोटॉन है, देखो दोनों जगह, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन ना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ, उधर भी बताया था, स्लाइड दिखलाया था मैं। आइसोबार, 2 डिफरेंट एलिमेंट हो और दोनों का एटॉमिक नंबर अगर ये मास नंबर सेम हो जाए तो उसको आइसोबार कहते हैं ना। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ना, which have
different atomic number बस same atomic mass are called isobar. iso means same, bar माने भार यानी मास, मास नंबर की मास, एटॉमिक मास की बात कर रहा है। तो वैसे एलिमेंट को हम लोग, वैसे एटम को हम लोग आइसोबार कहते हैं। जैसे आर्गन और पोटासियम, आर्गन और पोटासियम, आर्गन का 18 होता है एटॉमिक नंबर, इसका आपका 19 होता है, ठीक है। इसका 40 ले लीजिए, ठीक है, और इसका भी 40 ले लीजिए। तो देखो यहाँ पर मास नंबर सेम हो गया, ठीक है। या कैल्शियम ले लो ना, कैल्शियम याद रखना बहुत आसान है, कैल्शियम ले लो। यहाँ एटॉमिक नंबर इसका 20 है, इसका आपका 40 हो गया। तो यहाँ पर देख लो ये क्या हो गया, आइसोबार कहलाएगा। दोनों दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं लेकिन मास नंबर सेम हो गया। तो डाल्टन का जो कहना था कि वैसे एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ तो सेम हो गया, यहाँ पर फेल कर गया आइसोबार के केस में, ठीक है। तो यही आइसोबार्स आर द एटम्स विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल 14C एंड 14N ना, कार्बन C14 एंड नाइट्रोजन 14। और दूसरा एग्जांपल में कैल्शियम और पोटासियम का आपको दिया, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट they are differ chemically because the chemical characteristic depends on the number of electron which is determined by the atomic number। लेकिन इनका फिजिकल मास ये क्या कहा जाता है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस तो है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल, ये छोड़ो सब, केमिकल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होगा तो उसका केमिकल रिएक्शन अलग अलग होगा, लेकिन न्यूक्लियॉन्स सेम होगा। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हो गया आपका, दोनों का डिफरेंसेज, ठीक है। हालांकि यहाँ 19 है और 40 है, वो भी सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो छोड़ो उस पॉइंट को मैं डिलीट करता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है वहां पर। आइसोटोन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो तो उसको हम लोग आइसोटोन कहते हैं। आइसोटोन्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी, तो आइसोटोन्स, आइसो मीन सेम और टोन से यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए कह रहा है। तो वैसे एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे C6 C14, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देख लो ना, एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ 14 है, एटॉमिक नंबर 6 7 8 हो गया, यहाँ एटॉमिक मास 14, एटॉमिक मास 15, एटॉमिक मास यहाँ हो गया आपका 16, ठीक है। तब न्यूट्रॉन नंबर निकाल दो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों का डिफरेंसेज 8 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंसेज 8 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंसेज 8 आ रहा है। तो ये हम लोग को आइसोटोन्स कहलाएंगे ना। वैसे एलिमेंट जिनमें एटॉमिक न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो, आइसोटोन कहलाता है। दूसरा एग्जांपल सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन्स शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों का क्या है, अलग अलग है। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। अब हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ले जाना छांटना पड़ेगा, वो तो छांटेंगे तो भाग गए। हाँ, थोड़ा क्लास ले रहे हैं बच्चों को, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद छांट देंगे। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम ना, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल डाटा रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक्सपेरिमेंटल डाटा रिगार्डिंग स्पेक्ट्रा, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, जैसे विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड रे, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव, रेडिएंट एनर्जी, ये सब जो होता है किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना। नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल डाटा रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। टू थ्योरीज वेयर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द नेचर एंड द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दो थ्योरी है जो ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट का प्रोपगेशन जो होता है, ये लाइट किस नेचर का है ना। तो पहला है कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन का दिया हुआ था, ठीक है।
तो न्यूटन का कहना था, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल स्मॉल पार्टिकल, दैट मीन्स लाइट हैज पार्टिकल नेचर। न्यूटन का कहना था कि लाइट जो होता है कॉर्पसल्स है, मतलब कि पार्टिकल है, इट इज प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल स्मॉल पार्टिकल, मतलब कि पार्टिकल नेचर का होता है, इसी को हम लोग कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन डिफरेंट फेनोमेनन ना, कुछ फेनोमेनन ऐसे हैं जिसको ये फेल कर जाता है एक्सप्लेन करने में ना। कौन कौन में? तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन वाज नॉट एक्सप्लेन बाय यूजिंग द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द न्यूटन, बट इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ लाइट ना, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर पार्टिकल नेचर को हम लोग कंसिडर करते हैं तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को क्या करता है? एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन इट फेल्स टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। या इंटरफेरेंस फिजिक्स में और डिफ्रैक्शन भी फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जा रहे हो, कोई लाइट हम पास किए और उसी डायरेक्शन में आ गया, उसी मीडियम में लौट करके आ गया तो रिफ्लेक्शन हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन हो गया। इंटरफेरेंस में होता है कि हम लोग लाइट को पास करते हैं तो डिफरेंट पट्टी मिलता है, या डिफरेंट डार्क बैंड और ब्राइट बैंड में टूटता है, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे फिजिक्स में। डिफ्रैक्शन होता है कि कोई एज से जब लाइट पास कीजिएगा तो एज पे जाकर बेंट हो जाता है, तो उसी को हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। तो इसके बारे में इन दोनों चीज़ों को लाइट जो होता है, ये आपका कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो होता है फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए नया थ्योरी लाया गया। और वह नया थ्योरी क्या था? तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। इसी को लाया गया, मैक्सवेल का दिया हुआ था। इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इन 1864 टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में के लिए इसको लाया गया था, एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। माने लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इसके साथ दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड जो होता है एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, एंड ऑल्सो टू द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका भी ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब 3 डायमेंशनल चीज हो गया ये आपका, ठीक है। यही हो गया लाइट ना। लाइट इस तरह से ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में, इस तरह से देखो ये ट्रेवल कर रहा है वेव के फॉर्म में, ठीक है। और दो फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ठीक है। अब देखो, और ये तीनों एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। और वेव में दो पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट है। तो दो वेव के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, और इस हाइट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। चाहे ऊपर वाला लीजिए या नीचे वाला लीजिए, वह एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। आइए, ये आप देख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ना, सभी के सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। The vertical component of wave E indicates the change in the strength of electric field, and horizontal component of the wave H indicates the change in strength of magnetic field ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होता है उसके बारे में बताता है। These radiation do not require any medium for propagation। ये रेडिएशन जो होता है आपको डायरेक्शन, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है फॉर प्रोपगेशन, ठीक है। The radiation possess wave character and travel with the velocity of light। ये रेडिएशन जो होता है लाइट के वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिकॉज ऑफ द above characteristic radiations are also called electromagnetic radiation और वेव, और इस तरह से लाइट। लेकिन जानते हो ये भी फेल कर जाता है, इट डज नॉट एक्सप्लेन आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ये भी फेल कर जाता है, आगे चल के हम बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। वेवलेंथ ना, तो वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ
or between any two consecutive identical point in the same phase of the wave is called wavelength ना। तो वेवलेंथ अभी जस्ट बताए थे, दो क्रेस्ट हो या ट्रफ है, दो के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। द वेवलेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर, इसको हम लोग मीटर या सेंटीमीटर या एंगस्ट्रम या नैनोमीटर या पिकोमीटर या मिली माइक्रोन्स में मेजर करते हैं। यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट, एक तरह की डिस्टेंस है ये। दूसरा कंपोनेंट हो गया आपका, ये फैक्टर हो गया, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, नैनोमीटर में 10⁻⁻9 होता है, पिको में 10⁻12 होता है ना। ये पहले ही पढ़ा चुका हूं, पहला चैप्टर में ही। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स ना इन पर सेकेंड थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये देखो, ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग ट्रफ कहते हैं। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ कह दिए, ठीक है, और ये जो हाइट है, इस हाइट को हम लोग एम्पलीट्यूड कह दिए, या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग ले लेते, देखो ये दोनों को पिक से पिक मेजर कर लिए, यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो वह आपका वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, वेव मोशन ऑफ रेडिएशन ये हो गया आपका। ठीक है, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड। A cycle is said to be completed when wave consisting of crest and trough passes through a point। हाँ, जब एक साइकिल इसको कंप्लीट कहते हैं, एक क्रेस्ट हो गया और दूसरा ट्रफ हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को एक साइकिल कहा जाता है, मतलब कि एक ऊपर वाला, आधा ऊपर वाला और आधा नीचे वाला, कंप्लीट साइकिल कहला जाता है आपको। Velocity, the distance traveled by wave in 1 second is called velocity or speed of the wave। ठीक है, SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का होता है। कार्बन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज वैक्यूम, सी वेलोसिटी है, यहाँ पर कार्बन नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वैक्यूम इज ए कांस्टेंट commonly called speed of the light and it is equal to 10⁻³ × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेव नंबर हो गया, तो वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, इसी को हम लोग वेव नंबर कहते हैं, और पर मीटर में ये मेजर होता है। ठीक है, इसके बाद आपको वेवलेंथ देख रहे हैं, दो पिक देख रहे हैं, नीचे वाले को हम लोग ट्रफ कहते हैं, ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप देख, जो पिक होता है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को हम लोग एक वन कंप्लीट साइकिल कहते हैं। वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी आर रिलेटेड टू C बराबर h न्यू। ठीक है, तो h न्यू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, C बराबर h न्यू और न्यू बराबर C/λ होता है। एम्पलीट्यूड बता चुका हूं, इट इज हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। ठीक है, और इट टेल्स अबाउट द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ द वेव। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा। टाइम पीरियड ना, इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन। एक कंप्लीट साइकिल यानी एक ट्रफ और एक क्रेस्ट के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना समय लगेगा उसी समय को हम लोग टाइम पीरियड T कहते हैं। T बराबर 1/v। Electromagnetic spectrum, the arrangement of different type of electromagnetic radiation in order of increasing wavelength or decreasing frequency is known as electromagnetic spectrum। इसी को हम लोग electromagnetic spectrum कहते हैं। देखो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे हम लोग लाइट है ना, लाइट को पास कर दिए प्रिज्म से तो सेवरल इसमें टूट जाता है, तो उसी के आधार पर ये बनाया हुआ है तुम्हारा। जो विजिबल रेज होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये तुम्हारा दिया हुआ ना, और ये सजाया हुआ है तुमको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर ना। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ आपको क्या होगा, बढ़ रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घट रहा है। ठीक है, तो गामा रे की सबसे ज्यादा, सबसे कम वेवलेंथ आपका ये हो गया गामा रे, तब एक्स रे, तब वायलेट रे, तब होता है विजिबल, तब इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, तब रेडिएशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग सुनते हैं रेडियो पर। ठीक है, अब आ जाओ,
इसको याद रखना ना, एग्जाम में पूछता है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, किसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। ठीक है, तो रमी भक्स गामा, रमी भक्स गामा ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में सजा हुआ है, वेवलेंथ घटते हुए दिखाया गया है ये। ठीक है, रमी भक्स गामा, या ये बल्कि कह दो कि फ्रीक्वेंसी जो है आपका रेडियो वेव का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा कि कम होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में है ये ना, किस पर सजाया हुआ है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको सजाया हुआ है। रमी भक्स गामा, आर ए हो गया आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी, एम हो गया आपको माइक्रोवेव, आई हो गया आपका इंफ्रारेड, ये हो गया विजिबल, ये हो गया अल्ट्रावायलेट, एक्स हो गया आपको एक्स रे, जी हो गया आपका गामा रे। और इस तरह से ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी में ये सजा हुआ है। और इस तरह से सजाने से इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें याद रखना क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि किसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, किसका ज्यादा है। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो भूल जाते थे, कंफ्यूज करते थे, तो उसी वक्त में कोड बनाया था रमी भक्स गामा। ठीक है, रमी भक्स गामा में रेडियो वेव आ गया, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, जैसे जैसे गामा की तरफ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला जाएगा। कौन किसका फुल फॉर्म है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब आपको याद रखना है। चलिए, टाइम भी आपका हो गया है पीरियड का। ठीक है, उधर से कंप्यूटर टीचर भूत की तरह सवार है। मैं आपको क्लास अटेंडेंस लेने दीजिए, तब जाइएगा।